सुबह के तकरीबन 2 बजे। सारा दिन तो सेंड्रा थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड थी, कुछ हुआ नहीं, मगर अभी सुबह 2 बजे उसने मुझे उठाया कि माई वाटर ब्रोक एंड आई स्पोक टू द नर्स एंड शी सेड यू कम टू द हॉस्पिटल। तो इसलिए मैंने मम्मी को उठा दिया। मम्मी को बोला है कि आप पीछे सारी छोटी मोटी तैयारियाँ जो आपने करके रखी हैं वो करके रखो, और मैं फ़िलहाल सैंड्रा को लेके जाता हूँ। जब आपकी ज़रूरत पड़ेगी तब आपको बुला लेंगे, फ़िलहाल आप घर पे रेस्ट करो। अभी देखते हो कि टाइम पता नहीं, कुछ भी कितना भी लग सकता है, बट मैंने अपना वो डब्बा भी रख लिया है जो नर्स को देना है, जिसमें सैंड्रा की कॉल वगैरह होगी। और मैडम कह रही है वहाँ पता नहीं खाने को कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा ढंग का, पहले पिनियाँ लपेट ले 2-4। इसलिए कह रही वैसे भी हमारी लिस्ट में स्नैक्स थे, कहाँ पड़ा है पिन्नी डिपार्टमेंट, ये रहा। पिन्नियाँ भी लपेट लूँ और क्रैकर्स वगैरह तो ये कुछ पड़े हैं। हाँ मम्मी, मैंने सैंड्रा से पूछ लिया असल में सिचुएशन हुई क्या है, क्योंकि उसने मेरे को जल्दी में बोला, मतलब फटाफट सामान डाल हॉस्पिटल में। तो उसने कहा कि मैंने डॉक्टर फोन, मैंने कहा भाई तेरी कॉन्ट्रैक्शन 5 मिनट अपार्ट है, 5 मिनट्स अपार्ट जो हम जा रहे हैं। तो उसने कहा कि अभी नहीं है। अभी उसने कहा कि मैंने फिर भी अस्पताल फोन कर दिया। मैंने बोला मुझे कोई पेन नहीं हो रही, कुछ नहीं, बट द वाटर ब्रोक, सो शैल आई स्टे एंड स्लीप एंड कम व्हेन माय कॉन्ट्रैक्शंस आर अपार्ट। तो उन्होंने कहा नो, if the water broke you come, we want to make sure check everything, but you have time to take shower, freshen up, आराम से सारा तैयारी प्रिपेयर करके अपना सामान तसल्ली से लेके आ जाओ। तो इसलिए आपके जाने की तो फिर इसका मतलब बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। Said you're not going back. We're keeping you. ਹੁਣ वो कहती है इस कमरे 'ਚ ਹੁਣ ਜੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਵੜੀ ਆਓ। Water break हो जाए फिर. हाँ वैसे भी वो कहते हैं 24 आवर के अंदर करते ही हैं। Yeah. I mean it's better safe than sorry. Yeah, Right? yeah. I just want to make sure that because there's a risk of infection after Yeah. 24 hour, and let's go and see. I Okay. don't feel any pain right now. And the contraction can start very fast also once the water broke, from what I heard. Yeah, So they want to make sure, I guess, I'm well taken care of, which is not a bad thing, but which is a good thing. it's not what I was hoping. I was hoping to do the early labor smoothly at home with the ball, relaxing music. Hospital can be a bit stressful. Things don't always go as planned, but don't worry about stress. Yeah, we'll go. We relax there. We play a nice movie, okay? We relax in the hospital. We watch a movie. We will have a room of our own, no? Yeah. That's what. ठीक है. We watch a movie. Okay. Relax. I'm ready. Okay, mummy, you also relax behind. You ready? चलो, give me all your stuff. Will you be able to go back to sleep, Mummy? मम्मी सुबह दोपहर हो सकती है. You should be well rested. Yeah, I don't have any contraction right now. So It can be tomorrow. Yeah. because after 24 hours it can be dangerous. So if nothing happened in the next 24 hours, then they may do some medical procedure. But before that, I think they will keep it natural. Okay. So I'll relax. You relax. Okay, let's get going. Come. Please do like me. I don't have the key. It's okay, I come. Sandra is saying contractions have started. Try to take some rest, Mummy ji. Take rest, okay, mummy? We'll update you. Keep your phone close. हाँ जी, तो हम आए फटाफट, रूम तैयार था, उन्होंने कहा लो जी पहले कमरे अंदर आप चलो। तो अच्छा खासा खुला रूम है। हाँ अब एक कुर्सी लगी है मेरे लिए, सोफा कम बेड टाइप ये बन जाएगा। I don't know how much it open. I think it will open quite as much. And I think we have room to put the Costco mattress if at all I choose to bring it. But I'm fine without. I'm okay with this. You need to ask them because Yeah. usually they don't like to have anything on the floor in case of emergency. Emergency, yeah, okay. So You are right. now I need to get changed. Okay. We'll come and examine. Okay, so the situation is that the observer nurse came and she said that water broke significantly. So she came to check and she was like, oh, never mind, no need to check. It's pretty much out. And then She wanted to do a test. it was like, so she did a test on the. and she was like, cuff, so we can have more. And she was like, oh, no need to cuff anymore. It's pretty much all out. And then they put this machine, which is like an ECG. So this is the heart rate of the baby. And they said that whenever this number goes up, it means the contraction is ongoing. So they said that you have two options. Either we can induce for labor, or you have the option to wait for it to start naturally. But We're waiting first, right? So Yeah. there's no inducing happening at least before 6 hours. yeah, But she said in 6-7 hour, we
we can consider that. And you will bypass anyone that is already scheduled for induction because your water broke. So you'll be a priority if you choose to go down that road, but it's not mandatory. Yeah. And she said also, like that 24-hour window is not like Set in stone. set in stone. It can be longer also, depending. It's really case by case. Yes, and also while she was saying all that, we saw that number go high and the graph went up. And she said, I'm feeling a bit of a contraction. So she says, when the number goes up, you're seeing a contraction. And that happened within like 5 minutes. Yeah, we're about 4 minutes, 4 minutes out now to see if there's another one coming. Yeah. Oh, I see the number going high. It goes up and then it goes down. Let's see. It needs to go at Up to around 40, 50. Yeah. Because if you notice, this is how the graph changes on contractions. So let's see. And this, by the way, is the observation room, not the delivery room. So we'll be moved to the observation room when it is time. And as you can see, this whole thing comes as a bed, but I don't think I will be sleeping if the contractions go at the same speed or frequency. Those are not very painful. You should try to sleep. I will try to get some sleep also. I think there is a contraction coming. No, it went down again. No, it's coming. No? Yeah, trust me, it's coming. You face it? Oh, you feel it? Yeah. Okay, let's see. Oh, yeah, it came. Oh, you are right, doll. I kind of know what I feel now. Yeah, it starts with your belly. 38, 41. Okay, 44, 51. So, first one, the second one. This one took a little longer. You know what? I have an app. Let's do it on the app instead. Yeah, you have an app? Yeah, I have an app. For To log contractions? to log contraction. Okay. ये अपना सामान वामान बाकी जो बचा है वो निकाल लें. अब तो कुछ कह नहीं सकते जी कितना टाइम है. कॉन्ट्रैक्शन तो 5 मिनट अपार्ट है. 2 मिनट अपार्ट आने में कितना टाइम लगते हैं. 4 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, कुछ पता नहीं. मम्मी को फ़ोन करके अपडेट कर दिया और उनको बोल दिया कि आप सो जाओ. दिन के टाइम तो बंदा फ्रेश होता है, रात को थका भी होता है ना थोड़ा. कुछ भी बच सकता है, कुछ कह नहीं सकते. 4 बजे सोए थे जी. हमारी आंख लग गई थी 400 मेरी लग गई थी. और सैंड्रा को तो जो है थोड़ा सा सोने में तो दिक्कत ही आई. पलटियाँ ही लेती रही है बीच बीच में. कभी डॉक्टर आते चेक करने के लिए तो बस हल्की फुल्की नींद खुलती थी, मगर फिर भी मेरी 4 घंटे की रेस्ट हो गया तो मेरे अंदर जो है थोड़ी एनर्जी वापस आ गई है. बट अभी तक भी ये है कि कोई ऐसा मूवमेंट नहीं है. एज एन की कॉन्ट्रैक्शंस ऐसी नहीं है कि हम कहें कि भाई okay, we are good to go. So we may have to wait a little longer. And now again, it is the choice to wait whether भाई कि प्रोवोक करना है कि नहीं करना, कि कितनी देर रुकना है वाटर ब्रेक होने के बाद. नेचुरल डिलीवरी की कितने टाइम तक और वेट करना है. Some point in time it might have to be induced, right? It's just because the more you wait, the more you get tired, right? And the more you're tired, the less tolerance you have. And maybe a bagel or something else you want to eat, something nice. Something to eat mostly because... Yeah, because the food in the hospital, you know, is cereals and milk and everything. Okay, you want to drink some juice to kick Giru? No? Okay. But I think you got a lot of pennies in the night. 3? Yeah, 3. तो जी लेटेस्ट अपडेट, जो हमारी मेन डॉक्टर थी ना, अनलकीली उनकी भी शिफ्ट लगी हुई है. जिन्होंने शुरू से सैंड्रा को देखा था तो उन्होंने आके बताया है कि भाई देखो, जो इंड्यूस करने के लिए अभी जो दवाई दी जाती है ना, देखिए एक हार्मोन होता है. वो कह रहे हैं कि अगर वो डिलीवरी से 2-1 हफ्ते पहले दिया जाए तो लेबर बड़ी लंबी हो, थोड़ी पेनफुल हो सकती है. उस केसेस में जैसे मान लो बेबी अगर थोड़ा स्मॉल हो तब दी जाती है 37 वीक पे. वो कह रहे हैं मगर आप 40 हफ्ते पे खड़े हो, ड्यू डेट के एक दिन बाहर हो, आगे हो एज एन. और उन्होंने ये भी कहा कि भाई आपका वाटर भी ब्रेक हो गया है. तो वो मेरे को जो बातचीत समझ आई वो बेसिकली कहते हैं कि गिरती हुई दीवार को एक धक्का और. It's not necessarily about the 37 versus 40 week. It's more about the body being ready, right? Because I mean, some people their water can broke at 37 also. They can broke at 33. The number doesn't matter. And in my case, I was already, the cervix was already kind of starting to be ready, dilated and FS, and because the water broke also, but it doesn't mean that it's not going to be painful. But it's just
let's get it done. ओके तो बस अब उस पर फाइनल कॉल लेनी है, जब तक मैंने फ़ोन करके मम्मी को और सनी को अपडेट कर दिया है कि सिचुएशन क्या है। तो और वो और भाभी अभी फिगर आउट कर रहे हैं कि उन्होंने यहाँ आना है कि नहीं आना, क्योंकि भाभी जी की अभी ओबियसली प्रेगनेंसी है और वो दिन काफ़ी क्लोज भी हैं और थोड़ा सा उनका हार्ट का भी वो रहता है। तो सनी ने अकेले आना है कि किसी ने नहीं आना, और अगर मम्मी यहाँ पे हैं तो उनको मैं बाद में लेने जाऊँगा, पहले लेने जाऊँगा। तो वो सारी चीज़ें भी जो है हम डिस्कस कर रहे हैं। सैंड्रा भी फाइनल अपना जो है 2-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट निपटा रही है। वो अलग बात है कि उसने बीच में वॉक वगैरह भी कर ली है, क्योंकि हमने कहा था हम वॉक वगैरह साइड ट्राई करके देखेंगे, बट उन्होंने दूसरा रूम जो एक्चुअली डिलीवरी रूम होता है वो असाइन कर दिया है। ओके तो जी फाइनली ये जो है डिलीवरी रूम है जहाँ पे हमको मूव होने के लिए बोल दिया है। मेरे तो दिल की धड़कनें थोड़ी बढ़ रही हैं, क्योंकि जब मैंने वो देखा ना छोटे बेबी का बेड, तो हाँ जी, तो ये एज यू कैन सी ऑक्सीटोसिन हैज बीन इनिशिएटेड, Pitocin. पीटोसिन बट Oxytocin, yeah. विच इज ऑक्सीटोसिन। तो इसका जो है दिस विल गो ऑन फर्स्ट आवर। दे सेड द कॉन्ट्रैक्शन एंड पेन शुड नॉट बी दैट हाई। It depends for everyone, but Yeah. they're starting pretty low. I think 6 ml. And then they will increase the dose by every passing hour. Yes. Okay. See, he started moving already. Contractions and heartbeat is also increasing. चलो ग्राफ देखते रहेंगे हम साथ साथ. Fingers crossed. I think now the contractions are coming really close, doll. Do you feel? Now to they really seem like 2 minutes apart, and after some flatline, one more big one is coming now, doll. Yeah, you feel it? Clearly. I don't know what to do. I've never felt so helpless in my life. Like I'm contributing so little to all of this. You're doing good. Yeah. Well, at least I'm recording the video for future reference and memories. Yeah. 1, 2, very frequently. Oh, this one is still ongoing. It's pretty big. Jedu's heartbeat is like he's very active. 150. He's feeling it. He's feeling it also. Yeah. Easy for the baby. It's not easy for the baby. Yeah. Wow. This one is like still कॉन्ट्रैक्शन तो जी काफ़ी फ्रीक्वेंट हो गई हैं। मेन चीज़ जो डॉक्टर साहब ने बोला है वो ये है कि भाई जो सर्विक्स है ना वो डायलेट होना ज़रूरी है 4 सेंटीमीटर के आसपास, और लास्ट चेक के हिसाब से वो 1 सेंटीमीटर ही था। तो वो डायलेट होना ज़रूरी है, तभी जो है वो बेबी कितना पुश कर रहा है कितना नहीं कर रहा वो अब थोड़ी देर में भी, क्योंकि 2 मिनट अपार्ट कॉन्ट्रैक्शन आ गई हैं इस मेडिसिन से, तो अब सर्विक्स चेक किया जाएगा। और अगर तो वो हुआ उस रेंज में तो उसका मतलब बेबी आज ही आ रहा, नहीं तो डायलेट होने की वेट करनी पड़ेगी, जो कि वो कह रहे हैं वर्स्ट केस सिनेरियो लंबे से लंबा खींचता हुआ कल तक भी जा सकता है। मगर फिर उस केस में 24 घंटे से ऊपर हो जाएंगे वाटर ब्रेक किए हुए, तो उसकी अपनी जो है इम्प्लीकेशंस हैं कि इन्फेक्शन से कैसे बचाना है या क्या। तो अभी अपने को तो जैसे जैसे बता रहे हैं। ओ डॉल, big number. I even saw like 110 for a moment here. Looked like you were having a big contraction. Got down to 58. Yeah, it went like really off the chart. See? But by the time you see it there, It has already happened. Okay, you are done past it. Okay. सैंड्रा की पेन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, मतलब ऑलमोस्ट इसे कहते हैं रोने पे ही आ गई थी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शंस अब पेनफुल होती जा रही हैं। और अभी चेक किया हूँ तो वो कह रहे हैं कि सर्विक्स का भी पता ही नहीं लग रहा कितना डायलेट हुआ, क्योंकि एक मेम्ब्रेन अभी भी इंटैक्ट है, एक ब्रोकन है। तो इसलिए जो नर्स थी उसको तो समझ नहीं है, हम डॉक्टर को बुलाने गए हैं, बट पेन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। You're doing good. I thought that would be better than managing the pain. It's a very very sharp pain and it can take anyone. मैं तो जी बाहर आ गया, क्योंकि वो एपिड्रल देने का फैसला उन्होंने कर लिया, क्योंकि वो स्पाइन में इंजेक्शन लगता है तो वो थोड़ा पेनफुल भी होता है। और वो सैंड्रा से मैंने पूछा डू यू वांट मी टू बी इन द रूम, तो कहती नो यू कैन गो, क्योंकि उसको ऐसे दर्द में चीखता चिल्लाता देख के ना मेरे को थोड़ी घबराहट भी होनी थी। प्लस बंदा इतना ज़्यादा हेल्पलेस फील करता है ना कि कुछ कर नहीं सकते सिवाय साथ खड़े रहने देखने, ज़्यादा से ज़्यादा हाथ पकड़ने के। बड़ा ही मतलब जिसे कहते हैं ना
वो कि अगर मियाँ बीवी आपस में स्कोर रखे ना कि मैंने ये किया था तेरे लिए और तेरे लिए मैंने वो किया था, तो इस काम के बाद जिंदगी भर के लिए स्कोर लेडी हो जाती है, ये तो मानना पड़ेगा। Doll, see, you're having like a 74 level contraction, but you are sitting very calm, all thanks to epidural. But I'm still feeling the pressure. Oh, she said it's fine as long as it doesn't go below 100. It doesn't go below 100. Okay, I told you it went down for like a very short while and then it came back. See, you are having another contraction. It's like 66, 67, but you probably only feel the pressure. Thankfully, no pain. I was really getting scared. But how painful was the injection? Did they give it to you in the spine? Yeah. In the back directly? Yes, that's how they do it. And was it like painful? For like a quarter of a second. Oh, okay. Yeah, because it's like a painkiller by itself. Big one. She said also since the beginning his heartbeat hasn't been very high, right? Okay. So if he's anything like me, my baseline Heartbeat is athlete level. Athlete very, level. very low, like 56, Yeah. 57. Yeah. डॉक्टर आए थे, उन्होंने कहा कि भैया आपने खाना वाना खाना तो अभी खाओ, अभी टाइम है, क्योंकि डायलेशन जो है वो अभी ऑलमोस्ट सेम ही है, 4 इंच होता है, सेंटीमीटर होता है, पता नहीं क्या, तो इसीलिए आप हो आओ। और सैंड्रा ने एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ जो है जो हमने घर में स्टोर करी हुई थी वो मंगवाई है, और साथ में मैं खाना भी अपना या खा लूँगा या पैक करा लूँगा, और माता जी को भी अपडेट दे देता हूँ। अरे मम्मी ने कॉस्को वाले सब्जियों की इंडियन स्टाइल मिक्स वेज बना दिया। वेरी गुड मम्मी, वेरी गुड। ये इतनी थी थोड़ी सी, अच्छा, जितनी भी है बहुत है। इसमें क्या है? इसमें वो चिकन एयर फ्रायर का तो मुझे समझ आया। अच्छा अच्छा, तो एयर फ्राई में करने के लिए हमने मैरिनेट किया था, तो मम्मी ने कहा चल मैं पैन पे ही कर देती हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू माता जी, थैंक यू। थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा मम्मी, सैंड्रा ने ना कहा है कि बाय चांस डिलीवरी के एकदम बाद जो है अगर ब्रेस्ट फीडिंग शुरू नहीं हो पाती तो उसके लिए जो उसने कोलेस्ट्रम पहले ही कलेक्ट करके रखा है ना, प्री मिल्क जो होता है वो लेके जाना है। एक उसने फ्रीजर में रखा है, एक फ्रिज में रखा है, तो वो अब नर्स को दे देगी इन केस जो है फीडिंग एकदम शुरू नहीं हो पाती। तो उसने ये कहा है कि वो ले आना। तो मैं सोच रहा हूँ जो आपके इंसुलिन वाला वो पाउच है ना, उसके अंदर कोल्ड पैक्स होते हैं, उसमें ले जाता हूँ, क्योंकि आपकी तो इंसुलिन अभी फ्रिज में ही रहनी है, तो वो उसमें डाल के ले जाऊंगा, तो क्या कहते हैं वो ठंडा भी रहेगा और सेफ भी रहेगा। बाकी लाइटें पूरी जलाई है यार, आप भी आहा देखो कितना चैनल हो गया। हाँ जी, तो अब तो सारी लेटेस्ट अपडेट हमने आपको दे दी, अब वेट करनी पड़ेगी। मम्मी पता नहीं कितना टाइम है, तो जैसी खबर आती है वहां से फिर मैं आपको उस मौके के हिसाब से लेने आ जाऊंगा, जैसे आपके पोता पधारता है। ठीक है जी, बाकी अभी ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आगे पोता भी आ जाए फिर उसको देखते हैं लाना कब है, कैसे है, सनी का क्या प्लान बनता है, वो क्या है, वो सब फिर हम अगली वीडियो में आपके साथ डिस्कस करें।